Hello everyone. So we are completed the all chapters of our organic chemistry except one, that is aldehyde, ketones and carboxylic acids. So we just left this chapter because it is very much lengthy. It will take time to complete. So we completed amines before the examination. Okay. So now we will on our last chapter of the organic chemistry, that is aldehyde, ketones and the carboxylic acids. Okay, so we will start this chapter today, right? So now we know that these compound, all aldehyde, ketones and carboxylic acids, all have the carbonyl group. Okay, so all these compounds have carbonyl group. Okay, so what is the structure of carbonyl group? That is C double bond O and bond free. Okay, so in aldehyde we attach alkyl group with one bond and hydrogen with the second bond, then it become aldehyde. And in case of ketones, what we do, we just attach the alkyl group on both the sides like this, right? CH3H, it is become aldehyde. And when we attach like this, CH3, oh, this is what, this is our ketone. And in case of carboxylic acids, this is CH3C double bond O and OH, right? Now we see that what is the difference in aldehyde. Hydrogen is there with one bond. In case of ketone, the methyl group is there with the bond. And in case of carboxylic acid, OH group is attached with one side of the bond. So the common thing is this group is common in all, right? This one is common for all aldehyde, ketones and carboxylic acids, right? So firstly we will go for the nomenclature of aldehyde and ketones. When we complete these two part, then we will go for the carboxylic acids, right? So we will do the nomenclature. Although the common name of the compounds are not asked in board exams, only the IUPAC namings are asked, but still we should know the common name also. And the very much used common name of some compounds, so we will do that. And after that we will do the uh, IUPAC naming. Okay, so we will start the nomenclature of aldehyde and ketones. Okay, so what happens in case of the common naming? It is the name of the aldehyde is derived from the name of the carboxylic acids. Okay, how it is derived? Suppose we have the compound of two carbon, that is CH3COOH, and one compound we have CH3CHO. We know that it is a aldehyde group and it is a carboxylic group, right? Now this is the common name of this compound is acetic acid, as it is of two carbon. And the compound name, what will be the compound name? It will be, we will replace this ic by the aldehyde. Okay, so acid ACET will remain the same. Then after we will attach aldehyde with this. Okay, and acid will be removed, so the name of this compound will become, that is acid, that is from the carboxylic acid and aldehyde. Okay, aldehyde. So the name of this compound is acetaldehyde. So it is somewhat derived from the name of the carboxylic acid. Okay, one more we can take, that is suppose we have two compounds COOH, and next we are having this CHO. So the common name of this compound is benzoic
acid. We will replace this it by aldehyde, so name of this compound will be benzaldehyde. Benzaldehyde. Okay. Now for common naming, suppose we have the chain of more than 2 carbon, then how we can do the common naming, that is CH3 CH2 CHO. Suppose we have this compound, and again suppose that we are having bromine or halo group attached with this carbon, then what will happen? We will do the common naming in the way that the functional group carbon and the next carbon attached to it will be alpha carbon, next one will be beta, and next will be gamma carbon. We know दैट फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच होता है वो अल्फा होता है, और उसका एडजेसेंट जो होता है वो बीटा, एंड आफ्टर दैट इज गामा, राइट? तो वो गामा होता है. तो अब हम इसकी नेमिंग इस हिसाब से करेंगे. सो फर्स्ट वी विल टेक द प्रीफिक्स. हम प्रीफिक्स को पहले प्रेफरेंस देंगे, तो दैट इज बीटा ब्रोमो. बीटा कार्बन पे ब्रोमीन ग्रुप है, इसलिए बीटा ब्रोमो. देन व्हाट वी विल टेक ब्यूटाइरल डिहाइड. ओके, अगर ये यहाँ पर ऑइक एसिड होता तो ये होता ब्यूटायरिक एसिड, बट इन केस ऑफ एल्डिहाइड इट विल बी, एक हटा देंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटाइरल डिहाइड. ओके, इट विल बी ब्यूटाइरल डिहाइड. ओके, तो ये हो गया इसका कॉमन नेम, राइट? नाउ नेक्स्ट वी विल सी दैट अगर हम कीटोन के केस में कॉमन नेमिंग की बात करें, तो सपोज वी आर हैविंग दिस चेन क्लोरीन CH2 CO CH2 Cl, right? Again this is our functional group carbon, and this carbon will be alpha carbon, this one also be alpha carbon, दोनों alpha carbon हो जाएंगे, तो इसका common name क्या हो जाएगा हमारा? अल्फा अल्फा. नाउ फॉर रिमूव द कंफ्यूजन हम क्या करते हैं, वन कार्बन को अल्फा डैश लिख देते हैं, ठीक है? सो अल्फा अल्फा डैश लिख देते हैं. डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन ग्रुप अटैच है, क्लोरो एसीटोन. ओके, तो ये हो गया इसका कॉमन नेम, राइट? अब देखिए, अब क्या होता है कि हम 2 तरीके से एल्डिहाइड की नेमिंग करते हैं. वो 2 मेथड्स क्या हैं? फर्स्ट मेथड वो है एल्डिहाइड की नेमिंग के लिए जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग करते हैं, और सेकंड मेथड है जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो 2 हमारे पास कंडीशन होंगी. एक वो कंडीशन जिसमें वी नंबर द फंक्शनल ग्रुप कार्बन, ओके, फंक्शनल ग्रुप कार्बन, और दूसरा वो है वी डू नॉट गिव numbering to functional group carbon. We are talking about in case of aldehydes. Okay, तो अब ये 2 केसेस कैसे होंगे हमारे, हम देख लेते हैं, ठीक है ना? तो हमारे ये 2 केसेस होंगे. सपोज वी हैव अ चेन, ठीक है? हम चेन ले लेते हैं, दैट इज CH3 CH2 CHO. सपोज हमने सिंपल चेन ले ली, एंड हम यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच करना चाहते तो कर देते हैं. हम ये वाला ग्रुप अटैच कर देते हैं. अभी क्या है, हम इसको यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 3 and 4. व्हाट वी ट्राई टू डू दैट मिनिमम नंबर शुड बी गिवन टू द फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है ना? तो इस हिसाब से इसका नाम क्या हो जाएगा? On third carbon, that is a methyl group, so it will be 3 methyl. Then word root 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट. फर्स्ट नंबर कार्बन हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, ब्यूट 1 अल. ओके, सो इट विल बी 3 मिथाइल ब्यूट 1 अल. ओके, या फिर हम ब्यूटेन 1 अल कर सकते हैं, जिसमें हम ई नहीं यहाँ पर यूज करेंगे ब्यूटेन का, बिकॉज 1 इज काउंटेड एज द वॉवेल. तो 2 वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते. ब्यूटेन का ई और 1 वो एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए हम ई को स्किप कर देंगे. अदरवाइज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब हम नेक्स्ट देखते हैं.
जिसमें हम इस ग्रुप को क्या करेंगे, नंबरिंग नहीं देंगे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि हम इस केस में जिसमें हम इसको नंबरिंग नहीं देंगे, दैट विल बी, सपोज हमने ये लिया, सपोज हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ हमारा एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, राइट। अब क्या करेंगे हम, नंबरिंग यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो हमारे ये इस फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिल गया, ये इस वाले कार्बन से अटैच है, हमने यहाँ से नंबरिंग करें, क्योंकि इट इज़ अ रूल कि इस तरह कोई स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा तो एल्डिहाइड के केस में हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को क्या करेंगे, नंबर नहीं देंगे। और ये कौन सा कंपाउंड है, इट इज साइक्लोप्रोपेन, 1 2 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, साइक्लिक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, तो इट विल बी नेम ऑफ इट साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ये तो इसका हो गया। अब रहा ये, इसको हमने अभी कोई भी कुछ भी मेंशन नहीं किया इसके बारे में, सो इट विल बी, जब हम इस केस में नंबरिंग नहीं देते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, कार्ब एल्डिहाइड, वी विल कॉल इट कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। तो हमें कार्ब वर्ड यूज करना है कब, जब हम फंक्शनल ग्रुप के एल्डिहाइड कार्बन को क्या नहीं देंगे, नंबरिंग नहीं देंगे, तो इट विल बिकम कार्ब एल्डिहाइड, राइट, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं एक कंपाउंड अपना, सपोज हम CH3CO, ठीक है, so 1 2 and 3. Now it is a ketone because on both side alkyl group is attached, carbon is attached, so हम कहीं से भी नंबरिंग करें इसको सेकेंड नंबर ही मिलेगा, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी प्रोपेन टू ओन, ठीक है। इसका कीटोन का जो सफिक्स है ओन होता है, तो प्रोपेन टू ओन, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपेनोन है ना। कॉमनली इट इज नोन एज एसीटोन, इसको हम एसीटोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हमारा ये हो गया। नेक्स्ट हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। अब हम एक कंपाउंड लेते हैं अपना, सपोज हमने एक कंपाउंड लिया, दैट इज CH2CHCH2CHO, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज हमने एक हैलो ग्रुप अटैच कर दिया। अब हम नंबरिंग 1 2 3 4 यहाँ से शुरू करेंगे, इट विल बी 4 ब्रोमो ब्यूट, ठीक है, या फिर ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन 1 ठीक है। ये हो गया इसका IUPAC नेम, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सपोज हमारे पास ये साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ हमने सपोज ये वैलेंसी फ्री करके यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच कर दिया। नंबरिंग यहाँ से दोगे 1 2 3 4 5 6। इट इज नॉट अ बेंजीन रिंग, इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड, दैट इज व्हाट, हेक्सेन, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेन है ये, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, इट इज साइक्लोहेक्सेन। तो 4th नंबर के कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसको करेंगे 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब हमने क्योंकि इसको नंबरिंग तो दी नहीं, तो हम इसको कार्ब वर्ड यूज करेंगे, तो इट विल बी कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। ये हो गया कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, सपोज हमारे पास ये CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, नंबरिंग 1 2 3 and 4। अब क्या हो गया, ये हमारा कंपाउंड, दैट इज 1 2 4 कार्बन चेन ब्यूट, सेकेंड नंबर पर डबल बॉन्ड 2 इन, फिर फर्स्ट नंबर पर फंक्शनल ग्रुप 1 अल, ठीक है। तो इसका नाम हो गया ब्यूट 2 इन 1 अल, राइट, ये इसका नाम हुआ। अब हम देखते हैं और कौन सा कंपाउंड देखें हम नेक्स्ट करने के लिए, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं हम। तो सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, डबल बॉन्ड से ये हमने ऑक्सीजन को जोड़ दिया, यहाँ पर हमने CH3 ले लिया। हम नंबरिंग करें 1 2 3 4, ठीक है, 5 ऐसे कर लें, या 1
1 2 3, सॉरी हम नंबरिंग ऐसे करेंगे कि इसको मिनिमम नंबर मिले, तो 1 2 3 4 और 5, क्योंकि हमारा ये जो ब्रांच चेन का एल्काइल ग्रुप है इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट तो इसी को मिलेगा। अब ये ऑक्सीजन दोनों तरफ से कार्बन से अटैच है, दोनों कार्बन है, तो ये हमारा कौन सा ग्रुप हुआ, ये हुआ हमारा कीटोन, ठीक है, कीटोन ग्रुप हुआ। इसका नेम क्या होगा, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, पेंटेन, ई नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे, 1 ओन, ठीक है। तो ये हो गया 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ओन। अब हम एक और देखते हैं एग्जाम्पल, दैट इज CH3 CH2 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 CHO, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो वैसे IUPAC नेमिंग में तो इसका नाम क्या होगा, पेंटेनल, ओके, या फिर पेंट 1 अल। और अगर हम जनरल इसकी बात करें तो 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो इसका नाम हो जाएगा वैलेरल्डिहाइड। व्हाट विल बी इट नेम, इट्स नेम विल बी वैलेरल्डिहाइड, ठीक है। कॉमनली हम इसको क्या बोलेंगे, वैलेरल्डिहाइड बोलेंगे, राइट। और वैसे IUPAC नेमिंग में इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा पेंटेनल, राइट। अब देखिए और हम कुछ एग्जाम्पल करें, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम ये देख लेते हैं, दैट इज CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 एंड CH3, राइट। ये हमारा कंपाउंड है, सपोज नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब ये क्या है, 2 और 4 दोनों ही कार्बन पे हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच है, देन 2,4 डाई मिथाइल, ठीक है। ये तो हो गया 2,4 डाई मिथाइल। देन 1 2 3 5 नंबर की चेन है, ये दिस इज विल बी पेंटेन। थर्ड नंबर का कार्बन जो है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, हम इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, पेंटेन 3 ओन, सो इट विल बी आवर कंपाउंड, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड हो गया, राइट। तो आई होप हमको ये नेमिंग IUPAC, वैसे इसका नेमिंग बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमको समझ में आया होगा। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे एंड इफ़ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी देन, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड का क्या स्ट्रक्चर होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम यहाँ डाल लेते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप का क्या स्ट्रक्चर होता है हम देखते हैं, ठीक है। चलो, सो द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, डबल बॉन्ड O and 2 valencies free. We know the single bond is known as the sigma bond. These are sigma bond. In these pi bond, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा और दूसरा वाला हमारा क्या होता है, पाई होता है। इट मीन्स वॉट, कि हमारे इस पूरे कंपाउंड में हमारे पास 3 तो सिग्मा बॉन्ड है और 1 क्या है, हमारे पास पाई बॉन्ड है, ठीक है। समझ में आया हमको। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा कार्बन होता है वो एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करें देन इट विल बी 1s2 2s2 2p2, ठीक है। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अगर हम ग्राउंड स्टेट में देखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, दैट विल बी, ये p ऑर्बिटल हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, s ऑर्बिटल हो गया, ठीक है ना। तो हमारा 1s एंड 2s, राइट। तो ये तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें गए हमारे इसके हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर 2p में भी हमारा ये 1s 2s एंड दिस इज 2p, ठीक है। 2py 2px 2py 2pz, यहाँ पर हमारा जाएगा ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि यहाँ से एक एटम ओवरलैप करेगा और यहाँ पे पहुंचेगा। तो एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगा हमारा,
इट विल रिमेन एज इट इज। यहाँ से एक्साइटेड हुआ तो यहाँ पर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन होगा और ये हमारा ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये फिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। सो इट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन इन इट मींस in which the somewhat the similar energy orbitals combine to form the hybrid orbitals in which the energy of the orbital are इक्वल और सेम। थोड़ा सा डिफरेंस वाले ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं और उनकी एनर्जी क्या होती है, सभी की सेम होती है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये जो हमारा एक्साइटेड स्टेट में हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन किया है, ठीक है ना। अब किसी भी कंपाउंड में जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उतने ही हाइब्रिडाइज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारे कार्बोनिल ग्रुप में 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होगा, इतने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, कितने, ये वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। इट विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड। ये वाला जो होगा ये क्या होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड। तो जितना सिग्मा बॉन्ड बनाता है कोई कंपाउंड उतने ही ऑर्बिटल उसके पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। अब ये वाला जो है यही पाई बॉन्ड बनाएगा दूसरे ऑर्बिटल के साथ मिलकर, ठीक है ना। तो ये डबल बॉन्ड के